الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. قابل صد احترام حاضرین سنی تربیتی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں. آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما کی بارگاہ مقدس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کے سلسلے میں مجھ گنہگار فقیر بندے کو حق کہنے کی، آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی اور پھر ہم سب کو حق پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو الی آخرہ، اور سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تھی، آیت الکرسی جب نازل ہوئی تھی، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء الی آخرہ، یعنی ان آیات کے آخر تک جب یہ آیات نازل ہوئی تھی، ایک سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ انہ اور قل اللہم مالک الملک، یہ چاروں اللہ عز و جل کے عرش سے لپٹ کر عرض کرنے لگے، اے رب کریم، تو ہمیں ایسی قوم کی طرف بھیج رہا ہے جو قوم گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارے گی. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے آیتوں، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، مجھے اپنے شان و عظمت کی قسم، اگر کوئی میرا بندہ ان چار آیات کو پڑھ لے گا، ایک سورہ فاتحہ کو اور آیت الکرسی کو، قل اللہم مالک الملک اور شہید اللہ انہ والی آیات کو، ان چاروں چیزوں کو اگر میرا بندہ پڑھ لے گا تو میں دن میں 70,000 مرتبہ اس کے اوپر نظر کرم فرماؤں گا. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں اور آگے فرماتا ہے، میرا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اگر کوئی بندہ مومن رات میں سونے سے پہلے ان چار چیزوں کو پڑھ لے گا، اس کی تلاوت کرے گا، تو 70,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले हफ्तों में इसकी ज़ुरख आप में तकसीम की जाएगी। अब शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लाहु अल अज़ीज़ुल हकीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आज जो कुछ हो रहा है इसी दीन इस्लाम के लिए हो रहा है। आज सारी दुनिया की बातिल ताकतें मुत्तहिद होकर इस्लाम के खिलाफ साजिशें करती हुई नजर आ रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज उम्मत मुस्लिमा का हर दानिश्वर शख्स ये सोचता हुआ नजर आ रहा है, ये महसूस करता हुआ नजर आ रहा है और ये फिक्र करता हुआ नजर आ रहा है कि ये कौम कैसे तबाही के रास्ते पर आ गई, ये कौम कैसे जवाल पजीर हो गई, इस कौम का कोई पुरसाने हाल क्यों नजर नहीं आता है, क्यों ये कौम जिल्लत की वादियों में भटकती हुई नजर आ रही है। आप अंदाजा तो लगाइए, जिस कौम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जैसा रब मिला है, जिस कौम को नबी आखिरुज़्ज़मा जैसे रहमत वाले रसूल मिले हैं, जिस कौम को कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम तरीन किताब अता की गई है और जिस कौम को इस्लाम जैसी अजीम नेमत से मालामाल किया गया है, उसके बावजूद भी ये कौम क्यों तबाही में जिंदगी गुजार रही है, ये कौम क्यों बर्बादी में जिंदगी गुजार रही है, ये कौम क्यों जिल्लत की वादी में भटकती हुई नजर आ रही है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब तक के मुसलमानों ने अपनी जिंदगी को अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक गुजार रहे थे, अल्लाह ने इस कौम को कामयाबी का ताज अता फरमाया था। और ये कौम का आलम ये था कि जमीन के जिस हिस्से से चला करती थी, कामयाबी इसके कदमों को बोसा लिया करती थी, इज्जत बढ़ के इसको अपने बाहों में लिया करती थी। जब से मुसलमानों ने अपनी जिंदगी को बेलगाम छोड़ दिया है और अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू किया, उस दिन से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा तबाही के रास्ते पर चलती हुई नजर आ रही है, जिल्लत की वादियों में भटकती हुई नजर आ रही है। काश कि अगर आज के नौजवान ये महसूस कर लेते कि इस्लाम है क्या चीज, इस्लाम हमको कैसे अता किया गया है, इस्लाम हमको कैसे मिला है, इस्लाम को पहुंचाने वालों ने कितनी अजियतें बर्दाश्त किए हैं, कितनी तकलीफें बर्दाश्त किए हैं, कितनी मुसीबतें उन्होंने सहा है। अगर आज के दौर के मुसलमान इन चीजों का मुताला कर लेते तो आज हर जगह इस्लाम चमकता दमकता हुआ नजर आता। आज के दौर के मुसलमानों ने अहमियत इस्लाम को नहीं समझा है, इस्लाम की अजमत को नहीं समझा है। आज का नौजवान ये कैसे महसूस कर सकता है पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख को, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दीन इस्लाम के लिए अपने पेट पर पत्थर माने हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक को शहीद कर दिया गया है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए हैं इसी दीन इस्लाम के लिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। जानते हैं आप ये इस्लाम कितनी अजीम नेमत है, ये इस्लाम कितनी अजीम बरकत वाली चीज है। आप देखो तो सही, एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाए, ऐ बिलाल मदीने की गलियों में निकल जाओ और जाकर के ऐलान करा दो कि इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान करने वालों की जरूरत है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल फजर की नमाज मस्जिद नबवी शरीफ में अदा करने की दावत दी है और जाकर मुजाहिदीन को पैगाम पहुंचा दो। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, रात की तारीकी में हजरत बिलाल हबशी की आवाज गूंज रही है कोई नौजवान, है कोई मुजाहिद जो इस्लाम के नाम पर सरफरोशी का जज्बा रखता है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान करने वालों को याद फरमाया है और कल फजर की नमाज मस्जिद नबवी शरीफ में अदा करने की दावत दी है। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में मदीने की गलियों में आवाज लगा रहे थे। अचानक हजरत बिलाल एक मकान के करीब से गुजरते हैं। उस मकान में एक बेवा औरत
अपने 6 साल के नन्हे से बच्चे को लेकर आराम कर रही थी, उसके कानों के अंदर हजरत बिलाल हबशी की आवाज पहुंचती है कोई नौजवान, है कोई सरफरोशी का जज्बा रखने वाला जो इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखता है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान करने वालों को याद फरमाया है। हजरत बिलाल हबशी की आवाज जैसे इस खातून के कानों में पड़ती है, वो खातून नींद से बेदार हो जाती है, हमतन गोश हो जाती है और गौर करना शुरू करती है कि हजरत बिलाल क्या फरमा रहे हैं। हजरत बिलाल फरमा रहे थे कि इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान करने वालों की जरूरत है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान करने वालों को याद फरमाया है। इतना सुनना था कि उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोना शुरू कर देती है, वो गिरवे जारी करना शुरू कर देती है, इसलिए कि शोहर तो पहले ही जंगे बदर में शहीद हो चुके थे। अब इनके पास कोई ऐसा नौजवान नहीं था जो इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान कर सके। अब ये खातून रो रही है, रोते रोते हिचकियां बनने लगी और हिचकियों की आवाज जैसे ही बुलंद हुई तो करीब सोया हुआ 6 साल का नन्हा सा बच्चा नींद से बेदार हो जाता है। अपनी माँ के आंखों से नन्हे नन्हे हाथों से आंसू पोंछता हुआ अर्ज करने लगा, अम्मी जान कौन सा गम है जो आपको रुला रहा है, कौन सा गम है जो आपको सता रहा है, क्या अब्बू की याद आपको रुला रही है? इतनी रात आप नींद से बेदार होकर क्यों रो रहे हैं? माँ ने कहा, बेटा तू इस फलसफे को नहीं समझ सकता, तू इस बात को नहीं समझ सकता, तू सो जा। लेकिन माँ का वफादार वो बच्चा अर्ज करने लगा, अम्मी जान सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता हूं, आपकी आंखों में आंसू देखना गवारा नहीं कर सकता, जरा इतना तो बता दो आखिर आप क्यों रो रहे हैं? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गिरवे जारी करने वाली ये खातून अपने बच्चे से अर्ज करती है, बेटे आज हजरत बिलाल मदीने की गलियों में इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान करने वालों को याद कर रहे थे, लेकिन अफसोस मेरे पास कोई ऐसा नौजवान नहीं जिसे इस्लाम के नाम पर मैं कुर्बान कर सकूं। तुम्हारी उम्र तो छोटी है, तुम नन्हे से बच्चे हो, लेकिन जानते हो आप, माँ का वो बच्चा अर्ज करने लगा, अम्मी जान छोटा जरूर हो लेकिन माँ का वफादार हो, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हो, लेकिन आपकी आंखों में आंसू देखना गवारा नहीं कर सकता, आप मुझे ले चलो दरबारे मुस्तफा में पेश कर देना। माँ ने बच्चे की जब ये तड़प देखी, सुबह होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सुबह नमदार होती है, इस बच्चे को लेकर मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ माँ बढ़ती है। मस्जिद नबवी शरीफ में लोग नमाज पढ़कर मुजाहिदीन के रजिस्टर में नाम दर्ज करवा रहे हैं। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ से जब बाहर निकलकर तशरीफ लाते हैं तो देखते हैं कि एक बापर्दा, एक बाइज्जत खातून एक नन्हे से बच्चे को लेकर मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में खड़ी हुई नजर आ रही है। हजरत बिलाल से मेरे आका ने फरमाया, ऐ बिलाल उस खातून से पूछो आने की वजह क्या है, जिसके साथ एक नन्हा सा बच्चा है, हाथ में छोटी सी तलवार भी लेकर के आया है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल हबशी उस खातून के करीब जाकर के अर्ज करते हैं, ऐ माई जरा बताओ तो सही आने की वजह क्या है? वो खातून अर्ज करने लगी, ऐ बिलाल क्या तुम भूल गए कि रात को तुम ही तो थे जो सरकार मदीना का ये पैगाम पहुंचा रहे थे कि इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान करने वालों की जरूरत है, इसलिए मैं अपने इस नन्हे से बच्चे को लेकर हाजिर खिदमत हो गई हूं। इतना सुनना था, हजरत बिलाल दौड़ते हुए सरकार के कदमों में जा गिरे, अर्ज करने लगे, सरकार ये औरत जो बच्चे को लेकर के आई है मुजाहिदीन के रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने के लिए आई है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून के करीब तशरीफ ले जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ बापर्दा, ऐ बानकाब, ऐ इस्लाम की अजीम मुकद्दस शहजादी, जरा इतना तो बताओ तुम इस नन्हे से बच्चे को लेकर मैदान जिहाद में पेश करने के लिए आई हो, लेकिन बच्चे की उम्र छोटी है, बच्चा नन्हा सा है, ये बच्चा मैदान जिहाद में तलवार नहीं संभाल सकेगा, तुम्हारी नीयत अच्छी थी, इसका अजर अल्लाह तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। जब ये गुफ्तगू उस नन्हे से बच्चे ने सुनी, सरकार के कदमों से लिपट गया, अर्ज करने लगा, आका आप मेरी छोटी सी उम्र को देख रहे हैं, सरकार मेरे जज्बे पे तो नजर करम फरमाइए। या रसूल अल्लाह, मैं तस्लीम करता हूं मैं छोटा जरूर हूं, लेकिन मेरा जज्बा बहुत ज्यादा बुलंद है।
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا تو تلوار نہیں سنبھال سکتا، تو ڈھال نہیں سنبھال سکتا، تو کافروں کو کفر کردار تک نہیں پہنچا سکتا۔ بچے کے عشق رسول نے جواب دیا آقا تسلیم کرتا ہوں کہ میں تلوار نہیں سنبھال سکتا، لیکن میدان جہاد میں موجود مجاہدین کے جذبے کو تو بلند کر سکتا ہوں، انہیں تو اسلام کے نام پر جان قربان کرنے کا جذبہ دلا سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ننھے سے بچے کی عمر کا جائزہ لیں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ آج وہ ننھا سا بچہ جس نے ابھی جوانی کی بہاریں نہیں دیکھی، وہ ننھا سا بچہ جس نے ابھی زندگی کے امنگوں کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی جان قربان کرنے کا جذبہ اس بنیاد پر ہے کہ دعوت دینے والا کوئی اور نہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کے اشارے پر جان قربان کر دینا یہ قیامت میں سرخرو ہونے کی علامت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج تو نوجوانی کا عالم ہے، آج تو تین ٹائم پر پیٹ بھر کر کھانا بھی مل جاتا ہے، لیکن ہم کو اسلام کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی وقت نہیں ملتا کہ اسلام پھیلا کیسا ہے۔ آج دنیا کی ساری باطل طاقتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، صفیں باندھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان نوجوانوں کا پوزیشن یہ بن چکا ہے کہ اپنی عیاشیوں میں اپنی راتوں کو خراب کر رہے ہیں، اپنی عیاشیوں میں اپنی زندگی کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچو کیا یہ اسلام ایسے ہی پھیلا ہے؟ کیا یہ اسلام ایسے ہی گھروں سے گھروں تک پہنچ گیا ہے؟ کیا یہ مسجدوں سے اذان کی آوازیں ایسے ہی آ رہی ہیں؟ اللہ اکبر، جانتے ہیں آپ اور آگے بڑھو۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے تھے، اللہ اکبر، ایسا پوزیشن بن چکا تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت اسلامیہ کو سنبھالا تھا، کئی محاذ سامنے آ چکے تھے۔ اللہ اکبر، ایک سب سے بڑا فتنہ جو وہ نکلا تھا وہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ نکلا تھا، اور اس کے بعد مانیے زکوٰۃ کا فتنہ نکلا تھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو تیار کیا جا رہا تھا، لوگوں نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فاروق اعظم جن کے حوالے سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر نبوت باقی ہوتی تو اللہ عمر کو نبوت کا تاج عطا فرماتا، اس لیے کہ یہ صلاحیتیں اللہ نے عمر میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں آپ وہ فاروق اعظم بھی آ کر صدیق اکبر سے کہنے لگے اے ابو بکر، پہلے محاذ کا انتخاب کر لیا جائے، اس کے بعد محاذ کا آغاز کیا جائے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ دین اسلام اب مکمل ہو چکا ہے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ابو بکر کے جسم کے ٹکڑوں کو مدینے کے جنگل کے جانور لے جائیں گے یہ تو میں گوارا کر سکوں گا، لیکن میرے آقا کے دین میں کوئی ترمیم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں آپ خلافت اسلامیہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، مسیلمہ کذاب نے، یہ جو سب سے پہلا قادیانی تھا جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دروازے پر تعاون ماننے کی کوشش کی تھی، جس نے اعلان نبوت کیا تھا۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں آپ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کو بھیجا مسیلمہ کذاب کے پاس۔ جب جانتے ہیں آپ 70 صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے، جن کے سینوں میں قرآن مقدس جیسی عظیم نعمت محفوظ تھی، وہ صحابہ کرام کو گرفتار کر لیا گیا، ان کا ہاتھ کاٹا گیا اور مسیلمہ کذاب کے دربار میں لایا گیا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہو میں اللہ کا نبی ہوں، وہ صحابہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا اب کہو کیا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ پھر بھی وہ صحابہ کرام اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے تھے۔ زبان کاٹ دی گئی ہے، پیرے کاٹ دیے گئے ہیں، گرم گرم تیل کی کڑھائیوں میں انہیں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، اس اسلام کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، اس دین
दीन के लिए सहाबा इकराम ने कितनी कुर्बानियां पेश की हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मामला तय किया कि अब कुरान मुकद्दस को जमा किया जाए, इसलिए कि हुफ्फाज इकराम शहीद होते जा रहे हैं, हुफ्फाज इकराम की कमी होती जा रही है। ऐसा ना हो कि हमारे पास कुरान खत्म ना हो जाए। अल्लाह अकबर। उसके बाद कुरान मुकद्दस को जमा करना शुरू किया गया, कुरान मुकद्दस को लिखना शुरू किया गया है। आप जरा सोचे तो सही, इस रास्ते में हमारे असलाफ ने कितनी अजीम कुर्बानियां पेश की हैं, कितनी अजीम तकलीफें उन लोगों ने बर्दाश्त की हैं। और आगे बढ़ो इस इस्लाम के लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है दीन इस्लाम की अहमियत के हवाले से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न जश रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब आपने मक्कतुल मुकर्रमा में इजहार इस्लाम किया, ऐलान किया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम चुका हूं, इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला इब्न जश रदियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ लिया जाता है, उनका लिबास उतार दिया जाता है, उनका शर्ट उतार दिया गया, उनका तैबन खोल दिया गया और रेत के ऊपर घसीटा जा रहा है। दो जने हाथे खींच रहे हैं, दो जने पैर खींच रहे हैं, पलटा करके बर्फ की सील रखी जा रही है, सीने के ऊपर पत्थर रखे जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न जश रदियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुरा रहे हैं। काफिरों ने कहा, ऐ अब्दुल्ला, किसी को गर्म रेत के ऊपर घसीटा जाए तब भी क्या वो मुस्कुराता है? किसी के सीने के ऊपर बर्फ की सील रखी जाए क्या तब भी वो मुस्कुराता है? किसी के पीठ के ऊपर गरम गरम पत्थर रखे जाते हैं क्या तब भी वो मुस्कुराता है? इरशाद फरमाने लगे, ऐ जालिमों, मैंने जब इजहार इस्लाम किया तुम मुझे पकड़ लिए हैं और मेरे को सजा दे रहे हैं, मुझे सता रहे हैं। और अल्लाह की सुन्नत ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू मेरा इम्तिहान ले रहा है। बंदा मुझे सच्चा मानता है या नहीं मानता, बंदा अपने कौल में सच्चा है या नहीं। तो मैं अल्लाह को मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा हूं, मेरे करीम, ये लोग चाहे जितना मेरे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों ना तोड़े, अब मैं तेरा दामन तौहीद नहीं छोड़ सकता, अब मैं मजहब इस्लाम नहीं छोड़ सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने इस्लाम को समझा ही क्या है? हम क्या समझे हैं इस्लाम को? सिर्फ नमाज पढ़ लेना? यकीनन ये नमाज इस्लाम का सुतून है, रुकन है, दीन इस्लाम का रुकन है। ये नमाज अहम है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अमदन जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हजरत नुअमान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी तर्जुमानी और इसकी तशरीह फरमाते हुए इरशाद फरमाए कि जो हदीस पाक है कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जो जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है वो काफिर हो जाता है। हदीस पाक के ये अल्फाज है। तो हजरत नुअमान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो तरमीम फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अगर अमदन जानबूझकर लोग नमाज को छोड़ देंगे तो मरते वक्त शायद उनको कलमा नसीब नहीं होगा, कुफ्र पर उनकी मौत होगी, या आखिरत के मैदान में काफिरों के साथ उनका हश्र होगा, काफिरों के साथ उन्हें उठाया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और आगे बढ़े, इस्लाम की अहमियत को समझो। ये इस्लाम को हम क्या समझते हैं? हमने मुसलमान घर में हम पैदा हुए, हमारे वालिदैन मुसलमान हैं, हमको इस चीज की अहमियत नहीं है। आप जरा तारीख उठा करके देखो, पता चलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी और मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रदियल्लाहु मौला तबारक ताला अन्हुमा, इन लोगों ने, इन सहाबा इकराम ने कितनी कुर्बानियां पेश की हैं, कितनी अज़ियतें बर्दाश्त की हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जानते हैं आप, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर सैयदा रुक़ैया रदियल्लाहु ताला अन्हा अबू लहब के बेटे उतबा के निकाह में थी। और इंसान टूट जाता है एक जगह आकर। इंसान कहां पर टूटता है कि हर चीज इंसान कुर्बान कर देता है तो फैमिली के पास आकर कुर्बान कर देता है। एक बच्चा अगर बीमार हो जाता है
तो बाप अपनी सारी दौलत ले जाकर डॉक्टर के पास छोड़ देता है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बच जाना चाहिए, तुमको जितनी दौलत चाहिए ले लो, जो मांगते हो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे की जिंदगी बचा लो। अल्लाह अकबर। एक बाप बड़ी आरज़ू और मानों के साथ अपनी बेटी का निकाह करता है, लेकिन जैसे ही बच्ची कुछ इख्तिलाफात की वजह से अपने शौहर से तलाक लेकर आ जाती है या खुला लेकर आ जाती है, तो बाप के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आती है, बाप परेशान हो जाता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान मेरे आका, आप भी तो बाप थे मेरे आका। जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में लोगों के सामने, कुफ्फारे मक्का के सामने फरमा रहे थे, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, मेरे आका तो कामयाबी की दावत दे रहे थे, मेरे आका तो जन्नत की दावत दे रहे थे, मेरे आका तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की मारिफत की दौलत की दावत दे रहे थे। इसके एवज में लोग दुश्मन बनते चले गए, मेरे आका के रास्ते में कांटियां बिछाना शुरू किया गया, मेरे आका के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू किए, मेरे आका को अज़ियतें देना शुरू किए। जानते हैं आप, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मकान से तशरीफ ले जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सैयदा रुक़य्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोते हुए मेरे आका के दरबार के घर की तरफ आ रही है। मेरे आका ने देखा कि बेटी रोते हुए आ रही है, मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ बेटी क्या बात है? अर्ज करने लगी, अब्बा जान आपकी बेटी को तलाक दे दिया गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलाक देने की वजह क्या है? बेटी ने अर्ज किया, बाबा जान मुझसे ये कहा जाता अपने बाप को रोको दीन का काम करने से, वरना हमारे घर से निकल जाओ, मेरा बाप नए दीन का काम कर रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया, बेटी तुम अपने अंदर घर में तशरीफ ले जाओ, मैं अल्लाह के दीन की बात ये काबा मक्के वालों तक पहुंचा करके आता हूं। आप अंदाजा तो लगाइए, बेटी को तलाक दे दिया गया, उसके बावजूद भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन की बात बताने के लिए मक्के के बाजारों में नजर आ रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दीन की अहमियत को हमने कितना समझा है, दीन को हमने कितना जांचा है। हम जांचने की हमारे पास क्या औकात, हम क्या, हमारी बिसात क्या, हमारी औकात क्या है, लेकिन हम अमल कितना करें दीन इस्लाम के ऊपर। आज दुश्मनान इस्लाम चाहते यही है कि उम्मत मुस्लिमा को दीन से दूर कर दिया जाए, क्योंकि आप तारीख उठा करके देखो पता चलेगा, हर दौर में उम्मत मुस्लिमा को तबाह किया गया, मुसलमानों के कारोबार को लूटा गया, मुसलमानों को कत्ल किया गया, मुसलमानों के घरों को जलाया गया, हर तरीके से मुसलमानों को बर्बाद किया गया, लेकिन रोए जमीन से मुसलमानों को मिटा नहीं सके। तब दुश्मनान इस्लाम ने सर्च किया, तहकीक किया कि आखिर मुसलमानों के पास कौन सी ताकत है, कौन सी दौलत है जो इतना तबाह करने के बावजूद भी मुसलमानों को रोए जमीन से मिटा नहीं सक रहे हैं। तब उन लोगों ने महसूस ये किया कि मुसलमानों के पास सबसे बड़ी ताकत जो है वो दीन इस्लाम की ताकत है, वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत है। जब तक कि ये ताकत मुसलमानों के पास रहेगी, रोए जमीन से मुसलमानों को मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तब उन लोगों ने ऐसे नए तरीके ला करके ऐसे तरीके ईजाद कर दिए गए हैं कि अब मुसलमान बड़ी खुशी के साथ, शौक के साथ उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरी एक बात आपके सामने पेश करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। आज हम हर कोई ये कहते हैं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन बताओ तो सही, हम अपने आप से पूछे, अपने अंदर झांक करके देखें कि हम वाकई सरकार से सच्ची मोहब्बत करते हैं। जिस तरीके से मोहब्बत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों से किया है, कि हमने भी ऐसी मोहब्बत की हमारे रसूल से। कोई एक ऐसा दिन बता दो मेरे मुस्तफ़ा का, कोई एक ऐसा लम्हा बता दो मेरे आका का, जो मेरे आका ने अपनी गुनहगार उम्मतियों को फरामोश किया। लम्हा लम्हा उम्मतियों को याद करते रहे, लेकिन आज हमारी इतनी उम्र हो गई। आज अब देखिए आप 10:30 हो रहे रात के,
सुबह से लेकर हम फजर की नमाज से लेकर आज तक, अब तक, इस वक्त तक हमने कितने मर्तबा हमारे आका को याद किया है, कितने मर्तबा हमने दुरूद शरीफ का नजराना सरकार की बारगाह में पेश किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, असहाब सुफ़ा के पास मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम भी तशरीफ फरमा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर बात कर रहे थे सहाबा इकराम के साथ। अचानक आका की आंखों में आंसू आ गए, मोटे मोटे आंसू जब मेरे रसूल की आंखों से निकल रहे थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, अभी तो आप हमसे मुस्कुराकर बात कर रहे थे या रसूल अल्लाह, ये अचानक आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत की मुझे याद आ गई है। अरे अबू बकर, अगर तुम मुझे राजी देखना चाहते हो, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, अपने हाथ उठा लो। सिद्दीक अकबर ने हाथ उठाया, फारूक आजम ने हाथ उठाया, उस्मान गनी ने हाथ उठाया, मौला अली ने हाथ उठाया, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हाथ उठाए, हजरत बिलाल हबशी हाथ उठाते हैं, हजरत अबू हुरैरा हाथ उठाते हैं, दरबार रसूल के गुलाम हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने वो भी हाथ उठाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम सब ये दुआ करो, अल्लाह तो उम्मत मोहम्मदिया को मगफिरत का परवाना अता फरमा दे। जब तमाम साहबा इकराम ने सरकार मदीना की उम्मत के लिए दुआ करने लगे, मेरे आका मुस्कुराना शुरू कर देते। उम्मत का इतना लिहाज था, उम्मत का इतना ख्याल था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती है, एक मर्तबा मैं और सरकार मुस्कुराकर बातें कर रहे थे, बड़ा अच्छा माहौल था, हाथ में हाथ था, उंगलियों में उंगलियां मिली हुई थी, बड़ा खुशगवार माहौल था। मेरे आका मेरे बाजू मुस्कुराकर मेरे बाजू बैठकर मुस्कुराकर मुझसे बात कर रहे थे। अचानक आसमान पर बिजली के कड़कने की आवाज आती है। जैसे ही बिजली के कड़कने की आवाज आई, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ से हाथ को छुड़ा लेते हैं, टहलना शुरू कर देते हैं, बेचैन हो जाते हैं, कभी आसमान की तरफ देख रहे हैं, कभी जमीन की तरफ देख रहे हैं, कभी मेरे चेहरे की तरफ देख रहे हैं। इसी तरीके से मेरे रसूल टहलते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक आसमान पर बिजली के कड़कने की आवाज आ जाती है, बादल गरजने की आवाज आती है। मुस्तफा जाने रहमत बेचैन व बेकरार होकर फिर रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर गुजरती है, आसमान पर बादल छा जाते हैं और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश के खतरात जमीन पर गिरते हैं, मुस्तफा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती है, ए अल्लाह के प्यारे महबूब, अभी तो आप मुझसे मुस्कुराकर बात कर रहे थे, अचानक आसमान पर बिजली के कड़कने की आवाज सुनकर आप क्यों बेचैन हो गए, आप क्यों बेकरार हो गए? तो उस मुहसिन इंसानियत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, जब आसमान पर बिजली के कड़कने की आवाज आई तो मुझे कौम आद पर अल्लाह की तरफ से जो अजाब नाजिल हुआ था वो अजाब याद आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे गुनहगार उम्मतियों के गुनाहों के सबब से आसमान से पत्थर गिरने वाले हो। लेकिन जब बादल छा जाते हैं और बारिश बरसना शुरू हो जाती है, मुझे इत्मीनान हो जाता है कि मेरा रब मेरी उम्मत पर आसमान से अजाब नाजिल नहीं फरमा रहा है, बल्कि रहमत की बारिश नाजिल फरमा रहा है। आप जरा सोचो तो सही, जो रसूल बिजली के कड़क की आवाज सुनकर उम्मत के लिए बेचैन हो जाती हो, उस रसूल की खुशी के लिए हमने क्या किया है? उस रसूल को राजी करने के लिए हमने क्या किया है? अरे जो रसूल एक लुकमा खाने के लिए उठाते तो उस वक्त भी अपनी गुनहगार उम्मतियों को याद फरमाते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के नौजवान ज़िनाओं के अड्डों पर जाते हुए क्या कभी अपने दिल में ये इरादा किया, क्या कभी उन्होंने महसूस किया कि मेरे आका को कितनी तकलीफ होगी? सारी सारी रात सरकार किसके लिए जागते थे? हम गुनाहगारों के लिए, हम फकीरों के लिए, हम जैसे नापिकारों के लिए सरकार जाग जाग कर दुआ करते। तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इरशाद फरमाता, फलअल्लक बाक़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम,
इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। और कुरान मुक़द्दस में सूरह ताहा में 16 पारे में मेरे महबूब ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, और भी कई आयात है कुरान मुक़द्दस में सरकार के इसी गम को देखकर अल्लाह फरमाता मेरे महबूब आप इतना गम न करो, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, मेरे महबूब अन करीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मैं तो उस वक्त तक राजी नहीं हो जाऊंगा जब तक कि मेरी सारी उम्मत को अल्लाह नजात का परवाना ना अता फरमा दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने आमाल को सुधारने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करें, दीन इस्लाम की अहमियत को समझें, अपने घरों में इस्लामी कवानीन नाफिज करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम अपने ऊपर इस्लामी कवानीन को, इस्लामी कानून को नाफिज करेंगे तो दुनिया की कोई बातिल ताकत में इतनी हिम्मत और इतना दम नहीं कि उम्मत मुस्लिमा और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का कुछ कर सके। यानी हम खुद अपने आप को दीन से दूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुश्मनान इस्लाम नए नए कानून ला रहे हैं। अगर मुसलमान इस्लाम के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो जाएगा तो दुनिया देख करके कहेगी कि नहीं नहीं यार, मुसलमान तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन इस्लाम के खिलाफ मुसलमान नहीं चल सकता। ये दुनिया महसूस कर सकती है। हमने दुनिया को महसूस नहीं कराया, हमने दुनिया को बताया नहीं है, हमने अपने चेहरों को बिगाड़ लिया, हमने अपने लिबास को तब्दील कर लिया, हमने अपने स्टाइल को बदल लिया है। जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की शबाहत को इख्तियार करेगा अल्लाह उसी कौम के साथ उसका हश्र फरमाएगा। आप जरा सोचो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बाप के सामने अगर एक बेटे को अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है तो बाप का दिल तारा तारा हो जाता है, बाप का दिल बेचैन बेकरार हो जाता है। बाप कभी इधर चले जाता है, कभी ये मिनिस्टर के पास, कभी वो एमएलए के पास, कभी इसी लीडर के पास जाकर पैसे देता है, जो कुछ रहता है देता है, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। बाप के दिल को अजियत हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, लेकिन एक बाप अपने बेटे से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी मोहब्बत अपनी उम्मत से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर फरिश्ते घसीटते हुए हश्र के मैदान में लेकर जाते रहेंगे तो मेरे रसूल के दिल को कितनी तकलीफ होगी, कितनी अजियत होगी। क्या कभी हमने सोचा है सरकार के दिल के बारे में? हमने सरकार के बारे में सोचना छोड़ दिया, हमने इस्लाम के बारे में सोचना छोड़ दिया। इसलिए आज दूसरी कौम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई। जिंदगी में तबाही, बर्बादी, मुसीबतें, परेशानियां, ये सारी चीजें क्यों आती हैं? अल्लाह अपनी बारगाह की तरफ लौटने की दावत देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप सब यहाँ पर सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में तशरीफ लाते हैं। मैं ये फ़कीर गुनहगार बंदा खादिम सुन्नी दावत इस्लामी आप सब के कदमों का इस्तकबाल करता है और आप सबसे गुजारिश भी करता हूँ कि आप हर हफ्ता पाबंदी के साथ तशरीफ लाए, अपने दोस्त अहबाब को भी मरकज़ मोती मस्जिद की दावत दें। आपकी दावत से कोई एक नौजवान यहाँ पर आ जाएगा, उसके दिल में इश्क़ रसूल का शमा अगर रोशन हो जाएगा तो वही चिराग ख़ब्र की तारीक वादी में आपके लिए भी रोशनी का सबब बन जाएगा। आप कोशिश करें, आप भी तशरीफ लाएं, अपने दोस्त अहबाब को भी यहाँ पर मोती मस्जिद आने की दावत दीजिए। हर हफ्ता आप पाबंदी के साथ तशरीफ लाएं। अल्लाह अज़्ज़ व जल सबसे पहले मुझ गुनहगार फ़कीर बंदे को आप सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मौला करीम दौरान बयान अगर मुझ गुनहगार फ़कीर बंदे से कुछ बेअदबी हो गई है, कुछ गुस्ताखी हो गई है, ऐ अल्लाह मैं इन सबको तेरी बारगाह मुक़द्दस में गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। तेरे प्यारे महबूब के सदक़ो तौफ़ील मेरी तौबा को कबूल फरमाकर मग़फ़िरत का परवाना हम सबको अता फरमा दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।